In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen. On the behalf of IEEE UET Lahore, this is Aqsa Zahid signing in as your host, and we extend a warm welcome to you in this module, Open Source Technology. We stand here at an illustrative event of APIS arranged by IEEE UET. The avail of conducting this event is to provide you all with a set of skills that will allow you to feel more confident in using this technology. It will consist of interactive sessions for enhancing skills and lead you all to a jump in your professional portfolio. I want you all to give a huge round of applause and a big welcome to Mr. Babar Zahoor. Mr. Babar Zahoor is highly skilled consultant level person with keen focus on open source technologies. He is an exceptionally quick learner and expert in leading OpenStack tools. He is a senior IT professional with over 20 years of experience from global organizations. His experience in Asia and Europe brings a unique combination of technology, management, and solution development. His ability to design efficient solutions for complex problems give him a clear advantage as an effective solution consultant. He has done many projects like OpenStack Private Cloud Deployment at Openware Business Private Limited, OpenStack Deployment for Tune.pk, OpenStack Private Cloud Deployment at FastTech Solutions, Data Center Security Assessment FAST Pakistan, IT Infrastructure Deployment at Oxfam Country Office Kabul, Afghanistan, IT Assessment at Oxfam Country Office Bangladesh. Some of his publications are Central Management of Data Centers, Linux Load Balancer Training Videos, Linux Computer-Based Training Videos in Urdu, Open Source Web Conferencing Solution Training Videos. So now, without any delay, I would like Mr. Babar Zahoor to have the stage and start the session. Over to you, sir. Thank you very much, Aqsa. Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं यकीनन। सबसे पहले तो IEEE UET का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस इलेक्ट्रिकल सिम्पोजियम 2021 में मुझे इनवाइट किया और चाहा कि मैं आपके स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो शेयर करूँ। मेरा मेनली एक्सपीरियंस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है और मैं चाहूँगा कि आज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो मिथ्स हैं, ये जो मिसकंसेप्शन है या मिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको हम अच्छे तरीके से आप लोगों से शेयर कर सकें। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। काइंडली अगर मेरी स्क्रीन फ्रंट पे ले आएँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं कमेंट सेक्शंस और इस चीज़ों को नहीं देख सकूँगा क्योंकि मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक फाउंडेशन है जिसका मकसद है टेक्नोलॉजी फ्रीडम फॉर ऑल। ये फाउंडेशन 2008 में हमने स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका फाउंडर हूँ और इस फाउंडेशन का सिंपल सा मकसद है जो एक जुमले में आपको नज़र आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो IT प्रोफेशनल है, नॉन IT प्रोफेशनल, इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर है, घर का यूज़र है या प्रोफेशनल यूज़र है, उन सब को टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो और फ्री हो। फ्री से मुराद फ्रीडम हासिल हो। अच्छा, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? आजकल ये जुमला हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत से लोग इसको अक्सर अपनी टॉक्स में शेयर करते हैं। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली is one that displaces an established technology and shakes up the industry, or a groundbreaking product that creates a completely new industry. अल्फाज में बिल्कुल क्लियर है कि एक ऐसी चीज़ मार्केट में लाना जो कि इस्टेब्लिश इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी को शेक अप कर दे, हिला दे और एक नई रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दे, दैट इज़ कॉल्ड डिसरप्टिव। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इसने डिसरप्ट किया मार्केट को कि आपका जो इस्टेब्लिश इंडस्ट्री थी
एक दहाई से ज़्यादा, सॉरी 10 दहाइयाँ, बल्कि 10 दहाइयाँ भी मैं कम कह रहा हूँ, 100 साल 150 साल से ज़्यादा की इंडस्ट्री थी, उसको डिसरप्ट कर दिया और अब दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रही है। अच्छा, डिजिटल इज़ द मेन रीज़न just over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared since year 2000. अच्छा, आपको यकीनन बहुत से लोगों को पता होगा कि Fortune 500 के नाम से एक मैगज़ीन है जो दुनिया में बहुत अरसे से पब्लिश हो रहा है, और उस मैगज़ीन का काम ये है कि वो हर साल कंपनियों को, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, फॉर्च्यून्स हैं, उनको उनके फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से, उनकी दुनिया के अंदर जो सर्विसेज हैं उस हिसाब से सेग्रीगेट करके ये बताता है कि इस वक्त दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में कौन सी कंपनियां आ गई हैं। अच्छा, 2000 में जो कंपनियां इस मैगज़ीन के अंदर मौजूद थी, वो 2020 में उनमें से 50% से ज़्यादा, कितने परसेंट? 50% से ज़्यादा, यानी 500 में से 250 से ज़्यादा कंपनियां डिसअपीयर हो गई, यानी वो फॉर्च्यून 500 का हिस्सा नहीं रही। उसकी एग्जांपल एक कोडक कैमरा है, दूसरा नोकिया का फ़ोन है, और इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं जो इस रेस से बाहर हो गई। और इनको रिप्लेस किसने किया, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इनको रिप्लेस किया टेक कंपनीज़ हैं, और टेक भी स्पेशली वो जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनीज़ हैं, और ज़्यादा बड़ी तादाद सॉफ्टवेयर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फेसबुक है, आपका याहू था, इसमें आपका गूगल है, आपका टेस्ला है, और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां जो आप सब जानते हैं। अच्छा, एक एवोल्यूशन आया, एवोल्यूशन कहें या इसको रेवोल्यूशन कहें, इनफैक्ट रेवोल्यूशन इज़ द गुड वर्ड, कि आपका जो एआई है वो रोबोट की सूरत में हमारे सामने आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सोफिया के नाम से एक एआई रोबोट है जिसका इंटरव्यू लिया गया आज से 1-1.5 साल पहले या शायद 2 साल पहले, और उस इंटरव्यू में उसने आर्टिफिशियली अपने जो सवाल थे, जो लोगों के सवाल थे, उनका जवाब दिया। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि डिसरप्शन का व्हील क्या है। डिसरप्शन के व्हील के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, चूँकि आप सारे इंजीनियर्स हैं, देखने वाले लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे कंप्यूटर साइंसेज के हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, उन सब के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब के लिए, आप इस व्हील के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर APIs, अल्टरनेट करेंसीज, मैस पर्सनलाइजेशन, क्राउड फंडिंग, लेंडिंग और अनोनिमस, ये चीज़ें डोमिनेट कर रही हैं। और इस व्हील के अंदर अगर आप देखें तो आपको दरमियान में इसके अंदर नज़र आ रहा है डिसरप्टिव ट्रेंड्स प्लस टेक्नोलॉजीज़, और क्लाउड लिखा नज़र आ रहा है। रियल टाइम ऐप्स हैं आपकी, सोशल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। उसके बाद आपके पास ये अगर आप देखें बिग डेटा, आपके पास गेमिफिकेशन, मैसेजिंग, जियो लोकेशन, ये बड़ी आपकी एप्लीकेशंस हैं। बिग डेटा में आपको पता है कौन सी चीज़ें चल रही हैं, गेमिफिकेशन में क्या है, मैसेजिंग आपके ये व्हाट्सएप टाइप की चीज़ें, जियो लोकेशन आपके गूगल मैप्स और इस तरह की चीज़ें ये आपकी लीड कर रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें वेयरेबल्स हैं, आपके पेमेंट सिस्टम्स हैं, आपका वर्चुअल AI+R है, शेयरिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और आपका मेकर्स और बीकन्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रप्टिव व्हील के अंदर हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो डिस्रप्शन इस वक्त चल रही है मार्केट में, वो बेस्ड ऑन दिस व्हील है। ये जो व्हील आपको नज़र आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर और भी चीज़ें मौजूद हों जो आपको यहाँ पे मैं ना दिखा सकूँ, लेकिन आपकी जो मेजर जो प्ले है, वो प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें आपके मार्केट में नज़र आएंगी। विद इन द व्हील ऑफ डिस्रप्शन द गोल्डन ट्रायंगल इज encircled by other emergent technologies and sectors affected by mobile, social and real time, such as big data, geolocation, cloud and more, जैसा मैंने अभी बात की। अच्छा, ये कुछ आपके पास कंपनियों के नाम हैं। आई होप सो इन कंपनियों को आप लोग सब जानते हैं और किसी ना किसी तरीके से आप इनके यूज़र भी हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक, हम यूज़र हैं इस वक्त, फेसबुक पे लाइव हैं। लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है। गूगल आपका मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें गूगल की आपकी
एनालिटिक्स सर्विसेज हैं, गूगल का आपका प्ले स्टोर है, गूगल की एडसेंस है, इसी तरह ट्विटर है, इसी तरह याहू है, रैक स्पेस क्लाउड की कंपनी है, अमेजॉन AWS क्लाउड की कंपनी है, यूट्यूब सामने लिखा नजर आ रहा है, मीडियम, विकिपीडिया और मैनी मोर. देयर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, हंड्रेड्स, जो कि फॉर्च्यून 500 के भी अंदर आती हैं. ये सारी फॉर्च्यून 500 के अंदर है. उसके अलावा देयर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो कि फॉर्च्यून 500 के अंदर नहीं हैं, लेकिन वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए वो जायंट बने और ओपन सोर्स के अंदर वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. ये आपको मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह दिखाऊंगा. अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ओपन सोर्स है क्या चीज़. सवाल बहुत ख़ास है कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स. तो चलें इसको ज़रा इसको अनलॉक करते हैं. ओपन सोर्स रेफर्स टू अ प्रोग्राम in which the source code is available to the general public for use and or modification from its original design. आप इंजीनियर्स जब भी कोई काम करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिज़ाइन मौजूद होता है. उसको हम एक ज़ुबान में कहते हैं सोर्स कोड. सोर्स कोड इस ओपन सोर्स के अंदर इज़ द प्राइमरी थिंग कि आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल हो, चाहे वो आपका हार्डवेयर डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल रेस्पबेरी पाई है, बनाना पाई है, ऑर्डिनो है, या इसी तरह आईओटी के जो डिवाइसेस हैं आपके पास, उनका डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके पास वर्डप्रेस है, आपके पास जूमला है, आपके पास ओडो ERP है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो दुनिया में इस वक्त काम कर रहे हैं. आप में से अगर कोई लोग मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर्स भी, एल्गोस भी हमारे पास अवेलेबल हैं. तो ये जनरल पब्लिक के पास ये सारे अवेलेबल हों ये चीज़ें, और एक आम यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके. सबसे पहला काम उसको इस्तेमाल करके, उसके बाद आप जैसे इंजीनियर, आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप जैसे साइंटिस्ट, डेवलपर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें जो उसका ओरिजिनल डिज़ाइन है, ताकि उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी लाई जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसके अंदर चेंज ला के उसके अंदर नई चीज़ें ऐड की जा सकें. तो इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स. सबसे पहला है फ्रीडम टू यूज़ एज अ यूज़र, वेरी क्लियर. फ्रीडम टू इन्हेंस, रीडिज़ाइन, चेंज एज अ कोडर, डेवलपर, इंजीनियर, साइंटिस्ट. फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट एज अ एंटरप्रेन्योर एंड कंपनी. रीडिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये है कि आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विसेज सेल कर सकें, अपनी चीज़ों को बेच सकें. ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, एंड्रॉयड क्या है जनाब, ज़रा बैक हो जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं. अच्छा, अब इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है मार्केट में, उस एग्जाम्पल को ज़रा हम देखते हैं जिस वक्त दुनिया की मार्केट को डिसरप्ट कर चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे हाथ में एक मोबाइल है, आपके पास भी ऐसे ही मोबाइल होंगे. किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास कोई इन्फिनिक्स XYZ. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स. मैं ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम नेम्स. लेकिन अगर आप गौर करें तो उन सारी ब्रांड्स के अंदर मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड एंड्रॉयड. 1997 में एक कंसोर्शियम बना, दुनिया के बड़े जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इस कंसोर्शियम को ज्वाइन किया और कहा ये क्या कि अगर हम सॉफ्टवेयर की रिसर्च को मिलके करें और वो ओपन सोर्स हो और उस रिसर्च को अपने अपने हार्डवेयर के अंदर एम्बेड करते जाएं जो हम हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी डिसरप्शन है मार्केट की वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और हम कलेक्टिव अप्रोच के ज़रिए दुनिया की मार्केट को आगे लेके जाएंगे. फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है इस वक्त वो 67% से ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट. नहीं सॉरी 70+% से ज़्यादा है. 70% जितने भी दुनिया में आपके स्मार्टफोन इस्तेमाल हो रहे हैं. उसके बाद अगर आप गौर करें तो एंड्रॉयड के वेयरेबल्स हैं जिसमें आपकी ये घड़ियाँ, रिस्ट वॉचेस जिसको हम कहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, टीवी आपके पास आ रहे हैं. मेरे पास पीछे इसी तरह का टीवी लगा हुआ है, एंड्रॉयड टीवी है. और गाड़ियाँ, जहाज़ के अंदर भी जो आपके सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर आपका उसको हम कहते हैं मीडिया सिस्टम्स, एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट मीडिया सिस्टम, जिसमें जहाज़ में आप ट्रैवल करें
तो आपको नज़र आएगा कि वो आप वो सारी चीज़, उसके अंदर भी एंड्रॉयड आपको नज़र आएगा, और दुनिया की बहुत सी चीज़ों में आपको एंड्रॉयड नज़र आएगा। तो एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको 2007 में कंसोर्शियम बनाया गया, 2005 में गूगल ने इसको एक्वायर किया, गूगल ने इसके अंदर इसकी ओनरशिप ली और सारी दुनिया से इसकी कंट्रीब्यूशन ली, हर शख्स से जो कंट्रीब्यूट करना चाहता था। और आज अब अगर गौर करें तो 2008 में गूगल ने अपना पहला वर्जन लॉन्च किया था एंड्रॉयड का, और आज 2020 में दुनिया इस एंड्रॉयड को ही इस्तेमाल कर रही है। इनफैक्ट 2020 में नहीं, इनफैक्ट 2013-12 में ये डिस्ट्रप्शन आ चुकी थी, और एंड्रॉयड की बेस पे इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट शेयर है। इस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है दैट इज ओपन सोर्स। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कंट्रीब्यूशन देखें उन कंपनीज की, जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका मैंने नाम लिया था फॉर्च्यून 500 के अंदर, जिनका नाम है, जिसमें एक कंपनी का नाम है फेसबुक, जिससे हम लाइव हैं। तो code.facebook.com या opensource.facebook.com अगर आप खोलें, यू विल फाइंड कि ये सारा ओपन सोर्स में, ये स्क्रीनशॉट है, ओपन सोर्स में आपको इसके जितने भी जिस सॉफ्टवेयर हैं जो ये अपने पूरे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, चाहे उनका ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से है, चाहे प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट से है, चाहे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वीडियो वीआर के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, iOS हैं, एंड्रॉयड हैं, बैकएंड हैं, आपके डेटाबेसेस हैं, आपके फाइल सिस्टम के सिस्टम्स हैं, आप सिक्योरिटी के हैं, ये सारा कुछ ओपन सोर्स में इस वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर आप आज की डेट में एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके फ्यूचर में आप देखते हैं कि वही चैलेंजेस आएंगे, या फिर वेबसाइट को छोड़ें, आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इमेज प्रोसेसिंग करवानी है, और आप ये चाहते हैं कि जो एल्गो फेसबुक का चल रहा है, मुझे वो एल्गो इस्तेमाल करना है, तो यू विल बी एबल टू यूज दैट एल्गो ओवर देयर। गिटहब पे ये सारा कोड पड़ा हुआ है। उसके बाद एक और बड़ी कंपनी, उसका नाम है गूगल। opensource.google.com अगर आप जाके देखें तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ये प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ, जो आपको इस तरीके से नज़र आती हैं। प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स को अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि गूगल कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में इनको इस्तेमाल कर रहा है, और उसने गुड फेथ के अंदर दुनिया के अंदर ये ओपन सोर्स किया हुआ है। सो हियर इज़ अ वे आउट फॉर यू। आप खुद सोचें कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपको बनाने पड़ जाएं, आपको नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी को, चले यूनिवर्सिटी की भी बात नहीं करते, एक बड़ी कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं जो बनाने के लिए इसके ऊपर मेहनत करेगी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, कई साल लग सकते हैं। तो आपके पास ये इकोसिस्टम है। अच्छा जी, क्लाउड नेटिव एक नई टर्मिनोलॉजी है जिस वक्त दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और आप जब भी किसी कंपनी में नौकरी करने जाएंगे तो आपको ये अल्फाज सुनने को मिलेंगे। आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट राइट नाउ, अभी स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग इज एन अप्रोच इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट that utilizes cloud computing to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private and hybrid clouds. इसके अंदर खुसूसियत क्या है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मेथडोलॉजीज हैं उनके अंदर आप बिल्ड एंड रन स्केलेबल एप्लीकेशन, ये मेथडोलॉजी ऐड करते हैं जो कि आपके पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर रन होती है। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन cncf.io, अगर नोट कर सकते हैं तो उसको आप नोट भी कर लें, cncf.io। ये इसका लैंडस्केप आपको मैं दिखा रहा हूं, और लैंडस्केप दिखाने की एक ख़ास वजह है। ये वजह है कि आपको ये समझ आए कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो आपको सारे सॉफ्टवेयर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप इधर देखें, स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग, एप्लीकेशन डेफिनेशन, इमेज बिल्डिंग, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी, प्लेटफॉर्म, ये नीचे देखें, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड एनालिसिस, security and compliance, key management, container registry, automation and configuration, cloud native storage, container runtime, cloud native network, API, service proxy, remote procedure call, coordination and service discovery, scheduling and orchestration, service mesh। इसके अंदर आपको
इतने कार्ड्स में से, स्टार में से मेरा ख्याल है 26,43,949 में से सिर्फ 944 दिखा रहा है, सिर्फ 944। कितने हैं जी? 26 लाख। अच्छा, अब ये देखें, ये कहते हैं कि हम मार्केट कैप जो कवर कर रहे हैं इस वक्त दुनिया का, वो है $15.3 ट्रिलियन। $15.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, वो कवर कर रही है। और फंडिंग उसके पास कितनी है? $16.62 बिलियन, $16.62 अरब ये फंडिंग है उसके पास। चलें जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रही है? अब जरा गौर करें, आपको IBM DB2 भी नजर आएगा, इग्नाइट नजर आ रहा है, हडूप नजर आ रहा है, क्लाउड इवेंट्स नजर आ रहा है, स्पार्क नजर आ रहा है, ये गूगल क्लाउड, ठीक है जी, नजर आ रहा है, मारिया DB नजर आ रहा है, सीक्वल सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है जी, इसी तरह और ये परकोना जो कि आपका माई सीक्वल का सेटअप है, ठीक है, डी ग्राफ डेटाबेस है, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर आप खुद गौर करें कि मार्केट कहाँ जा रही है, अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्लेटफॉर्म जो कि क्लाउड नेटिव की जान है, जिसके बगैर क्लाउड नेटिव का काम नहीं चल सकता, उसका नाम है क्यूबरनेटीज, KUBERNETES.IO। और ये उसके कंपनीज हैं, यूज केसेस हैं जो इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद, ठीक है जी, जिसमें बॉक्स, जिसमें आपके पास सर्न लैब, कॉमकास्ट, ईबे, IBM और बहुत सी कंपनीज। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। यूजर इसको मैनेज नहीं करता, यूजर सिर्फ यूज करता है। द टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर्स अवेलेबल टू मैनी यूजर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है जी। ओपन सोर्स में एक एग्जांपल openstack.org क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये आपको ये सॉफ्टवेयर, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले अक्सा ने मेरी इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट फॉर XYZ कंपनीज, तो इसी तरह ये ओपन स्टैक जो है, ओपन स्टैक क्लाउड कंप्यूटिंग की डिप्लॉयमेंट इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मैंने की, इसी को डिप्लॉय किया। और इस सॉफ्टवेयर का काम वो है जो हमने इस पिछली स्लाइड में देखा है कि आपको पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ओपन स्टैक के नाम से मिलता है। आपको सिर्फ हार्डवेयर की जरूरत है। और ये उसके यूज केसेस हैं, चंद इस तरह के सैकड़ों यूज केसेस हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रेलवे, SBAB बैंक, वॉलमार्ट, ठीक है जी, ओकाडो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चाइना मोबाइल और इसके अलावा और बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनीज। अच्छा, डेवऑप्स क्या है जी? डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT ऑपरेशंस। आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इट एम्स टू शॉर्टन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस डिलीवरी विद हाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी। DevOps is a complementary with agile software development. Several DevOps aspects came from the agile technology methodology. मुझे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप म्यूट कर दें। थैंक यू। अच्छा, लेफ्ट साइड है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साइकिल, राइट साइड है उस सॉफ्टवेयर को चलाने का साइकिल, चाहे वो क्लाउड पे है, चाहे अपने इंटरनल डाटा सेंटर में है, चाहे वो सर्वर्स के अंदर चल रहा है, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स पे चल रहा है, व्हाटएवर, या माइक्रो सर्विसेज के तौर पे है। तो डेवलपर क्या करता है? प्लान करता है, कोड करता है, बिल्ड करता है और टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को, और उसकी रिलीज जाती है ऑपरेशंस के पास, वो डिप्लॉय करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, ये दो डिफरेंट कलर्स हैं, ये दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, और इन दोनों को मैनेज करने वाले लोग दो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं। एक वो है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एक वो है जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं और उसके डेली ऑपरेशंस को देखते हैं। इसकी मिसाल हम किसी भी XYZ कंपनी के सॉफ्टवेयर पे लगा सकते हैं, जो बड़ी कंपनी हो, जिसका 1 लाख से 10 लाख यूजर डेली आता हो, या इससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। फेसबुक की मिसाल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं।
कि क्या ये अपना सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसके नए अंदर फीचर नए ऐड कर रहे हैं, तो वो प्लान, कोड, बिल्ड और टेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने के बाद डिप्लॉयमेंट से पहले वो एक जगह पे वो टेस्ट भी करवाते हैं हम लोगों से। ये इंटरनल टेस्ट है, ये इसको हम कहते हैं स्टेजिंग एनवायरनमेंट, यूज़र टेस्टिंग, UAT, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट, और फिर उसको वो डिप्लॉय करके ऑपरेट और मॉनिटर करते हैं। ये सारी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। अगर पुराने तरीके से ये काम किया जाए, पुराने तरीके से मुराद ये है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सॉफ्टवेयर उठा के कोडर को IT ऑपरेशंस को दे दे, IT ऑपरेशंस पूरा सर्वर दोबारा लगाए और सर्वर के अंदर चीज़ें करे, तो ये साइकिल पूरा नहीं होगा। तो इस साइकिल को शॉर्टन किया गया है, वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कोशिश ये की है कि ओपन सोर्स के अंदर डेवऑप्स और ये चीज़ें ऐड करूं, इस वजह से करूं ताकि आपको मार्केट की डिमांड्स के हवाले से चीज़ें पता हों। ओपन सोर्स का तो मैं समझ आ गया है, इनमें से 90% जो प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन सोर्स ही हैं या ओपन सोर्स से बने हुए हैं। अच्छा जी, ये अब वही डेवऑप्स का साइकिल, कंटिन्यूस फीडबैक, प्लान, बिल्ड, ठीक है जी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिप्लॉय, ऑपरेट, ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया उन्होंने। रियल टाइम कम्युनिकेशन जी आ गई आपकी, रियल टाइम कम्युनिकेशन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि प्लान के लिए आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या टास्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, या आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। इसमें ट्रिलो, इसमें ड्रॉपबॉक्स, क्लिफी, ऑफिस, गूगल ड्राइव, डॉक्स, XYZ, स्प्रेडशीट, बेस कैम्प और बहुत सी सॉफ्टवेयर ये आपको नजर आएंगे। फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन, आपने टीम्स के साथ बात करनी है। आप 50 लोग से 500 लोग, 5000 लोग, 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। गिटहब की मिसाल है आपके सामने कि लाखों लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो कैसे कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि सारे प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, जिसका वो सॉफ्टवेयर गिट के नाम से सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कम्युनिकेशन भी कहीं मैनेज कर रहे होंगे ना। तो उसकी मिसाल मैटरमोस्ट है, स्लैक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, या XYZ, बहुत से मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है जी, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। अच्छा, बिल्ड के अंदर वो कहता है कि गिटहब इस्तेमाल करो, डॉकर इस्तेमाल करो, कुबरनेटिस इस्तेमाल करो, विजुअल स्टूडियो, TFS करो, टीम फाउंडेशन सर्वर, JFrog करो, गिट करो और गिट लैब करो। आई रिकमेंड कि आप गिट लैब करें। मैं लास्ट में अपना चैनल का लिंक भी आपको दिखाऊंगा यूट्यूब का, उसके ऊपर मेरे पास गिट लैब की जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं उसको सेटअप करना, उसको चलाना वहाँ पे मौजूद हैं। इवन इसका ये जो साइकिल है पूरा, जिसको हम डेवऑप्स साइकिल कहते हैं, जिसके अंदर CI/CD पूरा मैनेज किया जाता है, मैंने मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे साथ हेल्प की और हमने ये बिल्ड करके यूट्यूब के अंदर उर्दू में ट्रेनिंग्स रखी हुई हैं। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, यानी एक चलता हुआ सॉफ्टवेयर, उसमें नए फीचर ऐड करने हैं तो ये इंटीग्रेट होंगे, ऑब्वियसली उसके साथ इंजेक्ट किया जाएगा नया कोड। तो इंटीग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड कि पुराना कोड ख़राब ना हो, चलता रहे और उसके अंदर नए फीचर्स भी ऐड हो जाएं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन इन टूल्स की वजह से ये प्रोसेस आसान हो गया। फिर आप डिप्लॉय करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में ये बता रहा है कि ये आपके पास ये सेल्सफोर्स, CRM, ज़ोहो, ठीक है जी, सॉरी ये फीडबैक है, सॉरी इंटीग्रेशन में ऊपर है। ये आप देखें, जेनकिंस है, सर्कल CI है, ट्रेवियस CI है और गिट लैब भी इसका काम करती है, गिट लैब CI। और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो ऊपर हैं जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते हैं, कि एग्जिस्टिंग कोड के अंदर नया कोड इंजेक्ट करना और इस सारे कोड को टेस्ट करना, और इसके अंदर कोई बग्स आए तो उनको थ्रो बैक करना डेवलपर के पास कि इसको फिक्स करो। ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का हिस्सा है। फिर उसके बाद है आपका कंटिन्यूस फीडबैक। फीडबैक में आपके सर्विस नाउ, ज़ेनडेस्क और इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जो CRM हैं, जो कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं और उसके ज़रिए आप ये सारा प्रोसेस करते हैं। फिर आप डिप्लॉय में आ जाए तो डिप्लॉय में ये कहता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, एनसिबल है, माइक्रोसॉफ्ट एजर है, अजूर जिसको हम अक्सर कहते हैं, पपेट, शेफ और रैक स्पेस, वेक्टर ऑप्स, ऑप्सजीनी एंड सो मैनी नेम्स। अगर आप थोड़ा सा इसको सर्च करें तो ये जो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये छोटी होगी, हो सकता है इससे बड़ी भी आपको स्क्रीन नजर आए। और ऑपरेट में आप मॉनिटर करते हैं सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय से मुराद है कि क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना, क्लाउड की लोकेशन पे उसको भेजना और किसी वेब एड्रेस से आप उसको खोल के देख लेते हैं, चाहे आपकी मोबाइल ऐप है, चाहे आपका वेब ऐप है, चाहे आपका कोई बैकएंड ऑपरेशन है, ये सारा क्लाउड पे। फिर इसी तरह मॉनिटरिंग में ये बता रहा है कि जी ये नेगियस के नाम से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है, स्प्लंक है, न्यूरलिक है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। चले आगे चलते हैं। अब इसी तरह का अगर आप देखें
तो ये API टेक्नोलॉजीज़ में ये बता रहा है लेयर 7 है, एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग में ये बता रहा है आपको, क्योंकि आपके पास ये प्रेजेंटेशन होगी। आई वुड लव कि आप इस प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन दोबारा एक दफ़ा देखें। आपके पास ये ओपन सोर्स लिंक है, मेरी तरफ से कोई भी चीज़ छुपी हुई है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें तो ये कहता है एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग में ये सॉफ्टवेयर हैं। फिर आपको कहता है कोडिंग टूल्स के अंदर गिट आ गया, गिट हब आ गया, कुछ इस तरह के टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जेंगो, ये आपका जो जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन का, ये नज़र आ रहा है। इसी तरह सर्कल CI है, जेनकिंस है, PHP, रूबी, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही कोडिंग टूल्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कैनोनिकल, रेड हैट, उबंटू लिनक्स इसको हम कहते हैं, रेड हैट लिनक्स हम कहते हैं, CentOS है, XYZ, देयर इज सो मेनी थिंग्स। विंडोज़ का मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी, मोबाइल डिवाइस डेव है। फिर उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपर्स है और डेवलपर्स हैं, ठीक है जी। डाटा डेव टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखें तो आपके ये मुख्तलिफ डेटा से रिलेटेड क्रंच बेस, MongoDB, राइक, ठीक है जी, स्प्लाइस, ओरेकल, परकोना, MySQL, ये देखें ना, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये डेटाबेस के हवाले से या बिग डेटा के हवाले से हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखें तो ड्रीम होस्ट, रैक स्पेस, ठीक है जी, ड्रीम होस्ट, Amazon S3, XYZ, देयर इज सो मैनी नेम्स, ठीक है जी। डेवऑप्स टूल्स में अगर आप गौर करें तो वो आपको बताता है कि जी आपके कंटेनर्स के अंदर आपका कुबरनेटिस है, फिर आपका कोर OS है, लिनोड है, ठीक है जी, पिंगडोम है, XYZ। अभी सिर्फ नाम लेने का मकसद ये है, एक तो टाइम हमारे पास कम है और आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है मार्केट में। फिर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स में अगर आप देखें तो डॉकर है, हीरोको क्लाउड है, और ओपन शिफ्ट आपका क्लाउड बड़ा फेमस है, इलास्टिक बॉक्स है, बिल्ट आयो है, और ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपको ओपन सोर्स में मिलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हम मेरे YouTube चैनल का लिंक आपको नज़र आ गया है, youtube.com/बाबर ज़हूर, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 180 प्लस वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके काम की वीडियोस हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिखाऊं, इसमें डॉकर के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, इसके अंदर डेवऑप्स की ट्रेनिंग्स हैं, इसके अंदर गिट की ट्रेनिंग्स हैं, इसमें उबंटो की ट्रेनिंग है, जूजो की ट्रेनिंग्स मैं बना रहा हूँ, क्यूबरनेटिस की ट्रेनिंग पड़ी हुई हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की मार्केट में आपको चाहिए, जब आप मार्केट में निकलें तो आपसे जो आपका एम्प्लॉयर डिमांड करता है वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर की हैं। इसके बाद मेरे टीचर हैं मोहम्मद कामरान अजीम साहब। मोहम्मद कामरान अजीम साहब की ट्रेनिंग्स माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, और मैं यहाँ पे इस वजह से इनको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे साथ के हज़ारों लोगों ने दुनिया में इनसे बहुत कुछ सीखा है और माशाल्लाह ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को WBITT के नाम से, ये चैनल है youtube.com/WBITT, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और फिर ये एक हमारा पोर्टल है opensourceeducation.net, इसके ऊपर भी हमारी ये वीडियो ट्रेनिंग्स और ब्लॉग्स और ट्रेनिंग इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज़ अक्सर अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने कोई टेक्नोलॉजी का ब्लॉग लिखा है, किसी से कॉपी नहीं किया, आपने उसके ऊपर मेहनत की है और आप चाहते हैं कि वो शेयर हो, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वरना मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब आज की डेट में अपना अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, आज की डेट में अपना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्टार्ट करें, आज की डेट में अपना फेसबुक प्रोफाइल जो है उसको प्रोफेशनल करें, आज की डेट में यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करें, चाहे उसके अंदर वीडियोस हो ना हो, लेकिन कोशिश करें कि फ़न से हट के भी कुछ काम करें। हमारी नेशन को फ़न से ज़्यादा हमारे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है उन लोगों की जो साइंसदान हों, जो डेवलपर्स हों, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना लोहा मनवाएं, जो हार्डवेयर की दुनिया में अपना लोहा मनवाएं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोहा मनवाएं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ IT के लोग ही बड़े लोग हैं, नहीं, कोई भी शख्स जो कि अपना लोहा मनवाता है, काम करता है। हमें ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा लोगों की है जो कि इस टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आएँ ताकि ये नेशन आगे बढ़ सके। अच्छा, ये तो आपको पता है। मैं अब थोड़ा वापस चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जी, स्क्रीन शेयरिंग को क्लोज़। मैं चाहूँगा स्क्रीन शेयरिंग यहाँ क्लोज़ हो जाए। और अब हम रेडी हैं सवाल लेने के लिए, अगर किसी का कुछ सवाल है। जी मिस अक्सर, थैंक
Thank you, sir. Thank you for sharing all this information with us. Now, audience, what question do you have for the speaker? Just write in comments, then I will ask him on your behalf. Kindly open the comments. Okay. Sir, screen पे आपको visible है question? हाँ, मुझे comments में front पे नहीं नजर आ रहा. Question: How we can access the Google open source project? फहीम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आप opensource.google.com लिखें. आप जब वहाँ पे जाएंगे आपको क्लियरली वहाँ पे नज़र आएगा कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्या तरीका है. जो भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए आप उसको क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे कोड को एक्सेस कर सकेंगे. Okay, anyone? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, कैगल का मुझे नज़र आ रहा है. कैगल प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल आपके पास है जो मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है. आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, मैं यहाँ से देखता हूँ, शायद मुझे कोई क्वेश्चन नज़र आ जाए. अभी डीएस की फील्ड का स्टार्ट है पाक, ये क्या है? सर, हमने अभी डीएस की फील्ड का स्टार्ट किया है पाक में. डीएस का मतलब है डेटा साइंस में, और पाकिस्तान में स्टार्ट किया. अच्छा, तो मुझे दिखा दें दोबारा कमेंट्स दोबारा दिखा दें. गायब हो गया. और उसके बाद तो यहाँ हमें स्टैटिक्स के साथ कैसे हेल्प करेगा. अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है. मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है डॉक्टर शाहिद कमर, यूएस में हैं. वो डेटा साइंस के अंदर पाइथन को इस्तेमाल कर रहे हैं. पाइथन लैंग्वेज को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के लिए. वो स्टार्ट करते हैं, डेटा साइंसेस के बहुत से काम करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का काम करते हैं. लेकिन वो डॉक्टर शाहिद कमर साहब से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी पीएचडी किस चीज़ में है? आप कंप्यूटर साइंसेस के पीएचडी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर साइंसेस का पीएचडी नहीं हूँ. वो किसी और प्रोफेशन के साथ उनका ताल्लुक है. और माशाल्लाह अभी उन्होंने क्या किया है कि डीप लर्निंग टेक के नाम से उन्होंने एक चैनल बनाया है आप लोगों के लिए जो डेटा साइंस से रिलेटेड हैं. डीप लर्निंग टेक. अगर यहाँ पे कोई इसको चैट कमेंट्स में टाइप कर दे और उसके बाद जो है ना आपको वो deeplearningtech.org मिल जाएगा. वहाँ पे आपको उर्दू में डेटा साइंस की ट्रेनिंग मिलेंगी, जिसमें उन्होंने पाइथन को सिखाया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आप एज अ नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल किस तरीके से डेटा साइंसेस के अंदर आप अपना बिल्कुल डीप लर्निंग टेक डॉक्टर शाहिद कमर, आप किस तरीके से अपना लोहा मनवा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं. सेकेंडली, आपको पाइथन आ जाएगी, आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मैंने चैनल्स के लिंक दिखाए थे यूट्यूब के, वो भी काइंडली अगर आप पोस्ट कर दें यहाँ पे कमेंट्स में. अगर किसी को चाहिए हो तो बाद में ले ले. देखिए, अभी हो सकता है बहुत से दोस्तों को ये नज़र आए, मेरा तो ताल्लुक जी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे क्या लेना देना ये सॉफ्टवेयर की ओपन सोर्स की दुनिया से. चलें इस पर ज़रा बात करते हैं. मैं अक्सर जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में. अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी यूटी टेक्सला के एडवाइज़री बोर्ड का हिस्सा हूँ पिछले 4 साल से. बहरिया यूनिवर्सिटी के एडवाइज़री बोर्ड का हिस्सा हूँ पिछले 5 साल से. उस बोर्ड के अंदर जाके मुझे हर 6 महीने बाद एक नई डिफरेंट सेम सवाल आता है स्टूडेंट्स की नज़र से कि सर हमें क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का. ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप इसीलिए बैठे हैं या शायद देख रहे हैं या शायद सुन रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा. भाई फ़ायदा है ना दुनिया को. हम फ़ायदे को 2 मिनट साइड पे रखें, पहले ये तो सोचे कि मुझे क्या आता है. अगर मुझे कोई काम आता नहीं है, अगर मैंने दुकान स्टार्ट नहीं की और मैं ये कहता हूँ मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो मामला तो बड़ा ख़राब होगा. तो फ़ायदा ये है कि इस वक्त जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके इंजीनियरिंग के मैक्सिमम BABAR है, BABAR यूट्यूब चैनल का लिंक, BABER नहीं है, BABAR है. ठीक है जी, बाबर. अच्छा, आपकी ये जितने डिसिप्लिन्स हैं
इन सारे डिसिप्लिन्स में आपकी लिनक्स की ज़रूरत है। आपको ये जो आपके लर्निंग के जो आपके टूल्स हैं, सॉरी लर्निंग कह रहा हूँ, ओपन सोर्स टूल्स इनकी ज़रूरत है। मैं मिसाल देता हूँ, मैंने आज से 5 साल पहले यूटी टेक्सला में एक ट्रेनिंग की जो कि इनफैक्ट लिनक्स की ट्रेनिंग थी। मैंने जब वो ट्रेनिंग वहाँ पे लॉन्च की, मुझे उनके मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के वो डीन हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, क्लोज दोस्त। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जी आप हमें हमारे फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करें लिनक्स उबंटू की। अच्छा, जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे एक ज़बरदस्त चीज़ मिली देखने को कि 70% लोग उसके वो थे जो कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, और 30% वो लोग थे जो कि सिविल और आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। मैंने स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन के साहब थे, मास्टर्स के, उनसे मैंने पूछा कि आप ये उबंटू लिनक्स क्यों सीख रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है इसकी। तो उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा सर ये देखें, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये मैकेनिकल के कुछ मॉडलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है। मैं अगर इसका पेड वर्जन लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, जो कि शायद मेरे पास क्या, मेरी यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर? तो मुझे सर जब ढूंढता गया, क्योंकि मुझे अपना थीसिस करना था, अपना प्रैक्टिकल वर्क करना था, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर मिला। और जब मैंने इसको चलाया अपने विंडोज़ की मशीन के ऊपर तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं उबंटू के ऊपर, क्योंकि बहुत सी जगह पे लिखा हुआ था कि अगर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसको लिनक्स पे शिफ्ट कर दें, तो लिनक्स पे ले गए। इसी तरह आपके पास एक ऑक्टेव के नाम से सॉफ्टवेयर है, जो वो मैट के पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, उसकी रिप्लेसमेंट है आप, हाँ, मैट लैब की, ऑक्टेव के नाम से ओपन सोर्स टूल है, और उससे अच्छे आपको विजुअलाइजेशन के पूरे उसके अंदर एल्गोस मिलेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी एजुकेशनल लाइफ में रहें तो आपको इनकी ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो फिर तो आप मेरे से लिख के ले लें, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 22 साल में मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आया कि ओपन सोर्स के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे एक ही चीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, उसका नाम है लिनक्स। पूरी नहीं आती, थोड़ी सी आती है। तो मुझे अल्लाह पाक ने दुनिया घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करवाया। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी व्हाट इज़ द वे टू गेट अ जॉब, और क्या कहते हैं, बड़ी कंपनी के अंदर जाने के लिए। अभी मैं सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे पहले भी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, अपना काम भी किया। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ? इसकी पॉसिबिलिटी एक ही चीज़ से हुई कि जो मार्केट की डिमांड है, उस डिमांड को मेरा स्किल फुलफिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्किल मैंने सीखा था 1999 में, ये 98 कर लें, 98 के आखिर में, और उसी के अंदर चीज़ें बढ़ती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, जो मार्केट की ज़रूरत है, वो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सबके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। देखें आप कैसे सीखते हैं, सीखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जंप इन करें और आप जो है ना 5-10 साल मार खाएं मार्केट के अंदर और फिर सीख लें। दूसरा तरीका ये है जिसको हम कहते हैं कि वाइजर मैन का, ज़्यादा समझदार लोगों का तरीका है कि जो आपसे पहले मार्केट में मार खा चुके हैं उनको असेस करें, उनकी सक्सेस को, उनके फेलियर्स को असेस करें, देखें वो क्यों फेल हुए, देखें वो क्यों सक्सेसफुल हुए, और फिर उनसे डिस्कस करें कि आपके फेलियर की रीज़न आपकी नज़र में क्या है, और थोड़े टाइम में वही एक्सपीरियंस हासिल करें जो उनके पास है। जिस तरह कि आप माशाल्लाह IEEE को मैं दाद देता हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आपके इवेंट्स में मैं जाता हूँ, IEEE के स्टूडेंट्स की जो सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो आप लोग इंडस्ट्री के लोगों को बुला के अपने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। ये सेशंस होने चाहिए, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और प्लीज़ जो लोग IEEE जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैरियर को सीरियस लेते हुए आज की डेट में, आज की डेट से मुराद जब आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ 2 घंटे अपने लिए दें, अपनी ज़ात के लिए, और उन 2 घंटों में आप अपना टाइम, जो भी आपका टाइम है, वो आप अपनी ज़ात के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ने के लिए लगाएं।
हम अगर सिर्फ फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करेंगे, यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करेंगे, ओके टाइम तो गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम आज की दिन में आप ये फैसला करें कि मुझे डेवऑप्स सीखना है, मुझे डेवऑप्स सीखना है, और जस्ट जाके सर्च करें कि व्हाट इज डेवऑप्स, और सिर्फ 2 घंटे, चले 2 घंटे की हिम्मत नहीं है, लीव इट, 1 घंटा कर लें। 24 घंटे में 1 घंटा आपके लिए इंशाल्लाह 365 दिनों में 365 घंटे बनेंगे। आपको पता है, आप जो क्रेडिट आवर्स पढ़ते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्रेडिट आवर्स कितने होते हैं? 40 या 44 एक सब्जेक्ट के जो घंटे होते हैं 6 महीने में, वो इसी तरह क्रेडिट आवर्स बनते हैं ना, या 44 घंटे होते हैं या 80 घंटे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो घंटे किस तरह आप मैनेज करते हैं? एक दिन में पढ़ते हैं, ये रहा 2 दिन में मैं 48 घंटे पूरे कर लूँ? नहीं, आप रोज 1 घंटा 2 घंटा देते हैं उस सब्जेक्ट को, और वो डेली की रूटीन में आपके साथ आपको सीखना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, और आप मुझे अपना बड़ा भाई समझें, अपना सीनियर प्रोफेशनल समझें, अपना पाकिस्तानी समझें, अपना कुलीग समझें, जो मर्जी समझें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़ात पे टाइम लगाएं। नहीं लगाएंगे तो मुश्किलात का शिकार होंगे, जो बहुत से लोग आज की दुनिया में हैं। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने फ़लानी डिग्री कर ली, मुझे जॉब नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलें, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप सबके लिए। वो फार्मूला क्या है? आप उस फार्मूले के तहत करेंगे क्या? मैंने आपसे कहा आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, जो आता है उस पर डालना शुरू कर दें। आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर जो छोटा मोटा आता है उसको शेयर करें, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो पीयर्स के साथ। फिर उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। लिंक्डइन का जो एल्गो है वो बड़ा क्लियर एल्गो है। फेसबुक का, लिंक्डइन का एल्गो क्या करता है कि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा बोलते हैं आपको उस कैटेगरी में ऊपर ले जाता है। आपको डेवऑप्स के अंदर कुछ काम करना है, ओपन सोर्स पे काम करना है, क्लोज सोर्स पे करना है, इलेक्ट्रिकल आपके इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं उन पे बात करनी है, तो आप क्या करें कि आप इन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने लॉगिन्स बनाएं, अपने यूज़र्स बनाएं, और उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी बिल्ड करें। रातों रात कुछ नहीं बिल्ड होता। हमारे नेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, मेरी ज़ाती राय वो ये है कि हम शॉर्टकट की तलाश पे बैठे हुए हैं। आज रात मेहनत करूं, कल सुबह पाकिस्तान ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी 10 लाख की नौकरी लग जाए। 10 लाख की नौकरी के लिए 20 साल पहले देने पड़ते हैं। वो 20 साल आपको काम करके देने हैं, वो काम के ऊपर देने हैं, और 20 साल का एक्सपीरियंस एक्वायर करना है, अटेन करना है। उसके बाद आपको कोई 20 साल के बाद या 15 साल के बाद या इवन 10 साल के बाद आपको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की नौकरी देगा, या आप करोड़ों का बिजनेस बनाएंगे। उसके बाद आप गिटहब के ऊपर जाएं और अपना यूज़र अकाउंट बनाएं github.com के ऊपर। गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि आपने अपना प्रोफेशनल कैरियर दुनिया की बड़ी कंपनियों के सामने ले आए हैं, लेकिन उसका तरीका भी वही है जो मैंने अभी बात कही कि इनके सब के एल्गोज एक टेक्निक पे काम करते हैं। वो टेक्निक क्या है कि आप जितना इन एल्गोज के ऊपर जाके अपनी इंफॉर्मेशन फेंकते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ, जिस तरह मैं ओपन सोर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ ओपन सोर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह। ओपन सोर्स फाउंडेशन भी हमने बनाई, तो वो एक दिन में नहीं बना सारा कुछ, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बना। तो आप अपने साथ ये एक वादा करें अपनी ज़ात के लिए, अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए, कि आपने इन बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे दुनिया देखती है, यहाँ पे जाके आपने अपने प्रोफाइल्स बिल्ड करने हैं। सेकेंडली, फॉर एग्जांपल आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, केरास पे काम कर रहे हैं, टेंसरफ्लो पे काम कर रहे हैं, तो आप टेंसरफ्लो की जो लाइब्रेरीज हैं उनको आप वहाँ पे क्लोन करने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड मशीन लर्निंग से जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, कैगल जिस तरह एक बड़ा नाम है जो फेमस नाम है जिधर लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेटा सेट्स के अंदर अपना हाथ बिठाना शुरू करें। आपकी कंट्रीब्यूशन लोगों को नजर आनी चाहिए। नौकरी मांगना और नौकरी हासिल करना मेरी नज़र में 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
आप नौकरी मांगने जाएंगे तो आपको नौकरी 50 बंदों से 5000 बंदों में से चूज करके दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और दुनिया को वो नज़र आ रही है तो आपको लोग ढूंढ के बुलाएंगे कि सर हमें आपको इंगेज करना है। सर ना कहें, बेशक स्टूडेंट कहें, जो भी कहें, वो अपने मकसद के लिए आपको इंगेज करेंगे। और उनका मकसद क्या है? बिजनेस। और आपका मकसद क्या है? उस बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना। ये कंट्रीब्यूशन तभी होगी जब आप अपने आप को प्रोमिनेंट करेंगे। हमारे में और हमारे से नेबरिंग कंट्रीज जो लेफ्ट राइट पे बैठी हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है वहाँ पे हमसे ज़्यादा हुल्लड़बाजियाँ हों, हो सकता है हमसे ज़्यादा क्राइम होंगे, हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो एक काम पे बड़ा फोकस करते हैं। उनके कुछ लोग हैं जो मार्केट में बैठ के ना, ये आपके मुख्तलिफ टूल्स के अंदर बैठ के सिर्फ एक काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? वो अपनी अच्छाइयाँ लिखी जा रहे हैं। मैं डेवऑप्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं लिनक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं ओपन सोर्स का एक्सपर्ट हूँ, और टॉपिक्स के ऊपर ना मुख्तलिफ चीज़ें लिखना शुरू कर दी उन्होंने। जब वो लिखना शुरू कर दी तो हुआ क्या कि उनके ब्लॉग्स, वर्डप्रेस का ब्लॉग, wordpress.com पे जाके लिखें, ब्लॉग स्पॉट पे जाके लिखें, ये मैं नाम लेता जा रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, और एक एक ब्लॉग लिखते जाएं, दो दो ब्लॉग लिखते जाएं। टेक्निक ये है कि वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग लिखें, उसी को आप शेयर करें फेसबुक के ऊपर, उसी को शेयर करें गिटहब पे अगर कोई सोर्स कोड है, या सोर्स कोड के ऊपर कोई आपका कोड पड़ा हुआ है तो उसको वर्डप्रेस पे लिख दें या ब्लॉग स्पॉट पे जाके लिख दें। यूट्यूब पे जाके दिखा दें कि देखें दोस्तों मैंने ये गिटहब के ऊपर ये अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट में मेरा ये सोर्स कोड मैंने डाला है, मैंने ये लिखा है, उर्दू में बनाएं और इस सोर्स कोड से आपको ये फ़ायदा होगा, आप इस काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर सेल्फ प्रोमिनेंट इन द मार्केट। और जब तक आप मार्केट में नहीं प्रोमिनेंट होंगे, मेरे बहनों भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको कोई नहीं पूछेगा। मुझे झूठ नहीं बोलना यहाँ पे कि जी ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आपको अपनी जीत के लिए लड़ना होगा। और आखिर में एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसलिए मेहनत करते हैं कि आपको पीछे रहने का खौफ है, अगर आप इसलिए मेहनत करते हैं कि आपको पीछे रहने का खौफ है, तो आप फिर मेहनत नेगेटिव माइंड से करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग डे वन से ये कहता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, तो आप साथ वालों की टांगे खींचेंगे, हर वो उल्टा काम करेंगे जिससे साथ वाले पीछे रहें और आप आगे चले जाएं। लेकिन अगर आप मेहनत इसलिए करते हैं कि आपको आगे बढ़ने का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड पॉजिटिविटी है, आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपने आगे जाना है, तो आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। इस नेशन ने तब आगे जाना है जब आप सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप जितने लोग देख रहे हैं, आप एक दूसरे से मुकाबला करें, लेकिन वो मुकाबला ऐसा ना हो कि आप पीछे रहने के खौफ से कर रहे हैं। वो मुकाबला सिर्फ एक ही मकसद पे हो कि आपने आगे बढ़ना है और आपने आगे बढ़ने के शौक में ये काम किया है। ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपने दिमागों में से नेगेटिविटी निकालनी होगी। जब तक वो नेगेटिविटी नहीं निकलेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, अपने माशरे को और अपने मज़हब को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक है। मैं चाहूँगा कि आप मेरी जो हम्बल सबमिशंस हैं, सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, आप इनमें शायद किसी एक पे आप अमल कर लें, और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आपके लिए वो आसानी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी है, आई एम अवेलेबल। सर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन नेशनल जीडीपी और इकोनॉमी इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर अ स्मार्ट और मॉडल सिटी? ओह ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इम्पैक्ट देखें, आपको मैं जीडीपी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट बताऊंगा। मेरे पास फिगर्स नहीं है तो फिगर्स नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर जो कि आपको $1 अरब का मिल रहा है दुनिया में, मिसाल दे रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो जोड़ के आप ला रहे हैं, $1 अरब के आप सॉफ्टवेयर ला रहे हैं पाकिस्तान में, फिर भी आप अभी भी 83% जो है आप पायरेसी के इंडेक्स में आते हैं। पायरेसी का इंडेक्स पता है ना, इंडेक्स ना कहें, पायरेसी में आते हैं। पायरेसी का मतलब है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अनएथिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने परसेंट? 83%। 83% अभी भी हम दुनिया की नज़र में पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये करें कि वो $1 बिलियन वाली स्टोरी को 2 मिनट रोक दें और ओपन सोर्स पे आ जाएं, एक बड़ा मेजर चेंज करें, एज अ स्टूडेंट, एज अ कंपनी,
as a organization, as a financial institution, as a telecom industry, as a government, as a private entities, تو ہوگا کیا کہ آپ کے ملک سے جو $1 ارب باہر جا رہا ہے، اگر وہ صرف $500 ملین بھی آپ نے روک دیا تو آپ نے جی ڈی پی کے اندر ایک کنٹریبیوشن کی. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح ابھی انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اگر آپ سیٹ اپ کریں فور اسمارٹ سٹی، شاید کچھ کہا تھا انہوں نے آخر میں، میرا خیال ہے کو اسمارٹ سٹی کی بات کی تھی. تو اگر آپ وہ سیشن کریں سیٹ اپ کریں اوپن اسٹیک کو استعمال کرتے ہوئے، اوپن اسٹیک ہم نے دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اوپن اسٹیک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کی تھی میں نے. اوپن اسٹیک ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو اس وقت دنیا میں 15 ملین سی پی یو کورس پہ استعمال ہو رہا ہے. 15 ملین سی پی یو کورس کے اوپر، 15 ملین سی پی یو کورس از اے ویری بگ نمبر. اچھا آپ غور کریں کہ ایک کمپنی ہے جس نے 11/11 کو ایک سیلز کی تھی، اس کی ایک کمپنی پاکستان میں بھی ہے، اس بڑی کمپنی کا نام ہے علی بابا، اور اس کے اندر ایک علی ایکسپریس کے نام سے علی بابا ہے اور ایک JD.com ہے. یہ 2 کمپنیاں چائنیز، یہ 2 چائنیز کمپنیاں ہیں. ان 2 کمپنیوں میں 11/11 کی جو سنگلز کی جو سنگلز ڈے جو بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، 11 مہینہ 11 تاریخ لاسٹ ایئر جو سیلز کی تھی وہ $115 ارب تھی. 115 ارب. اچھا میں فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. اب ذرا غور کریے گا اس بات پہ کہ وہ کس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. ہاں یہ جواب میں اس کا دینا چاہوں گا. ناصر 2 منٹ رکیے گا، میں جو بات کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سیکیورٹی رسک کی بات کرتا ہوں. 2 کمپنیاں JD.com اور علی بابا، ان دونوں نے مل کے ایک دن کے اندر سنگلز ڈے میں $115 بلین، $115 ارب، ملین نہیں کہہ رہا، ارب کہہ رہا ہوں، کی سیل کی. ٹیکنیکلی پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو سیلز کی کون سی چیزیں بیچی؟ کچھ $100 کی چیز، کوئی اس طرح کا $200 کی چیز، کوئی اس طرح کی کوئی $20 کی چیز، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں بیچی نا. اس طرح کی کوئی $50 کی چیز ایسی بیچی. $1 ارب کی ٹرانزیکشن تو نہیں کی ایک. اگر $1 ارب کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک، تو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہے 115. تو ان کا کوئی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم، کوئی بھی مینول کھاتا سسٹم اس کو مینیج کر لیتا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ $1 ارب کا ایک سیل ہوگی، ایک کی دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، 115 ارب پورے ہو گئے. انہوں نے 100-150 کی ٹرانزیکشنز کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 1 ملین سے زیادہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئی، 1 ملین پر سیکنڈ. تو مجھے اس بات کا جواب دیں، جو یہاں پہ جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو بھی سننے والے ہیں، کیلکولیٹ کر کے بتائیں. بلکہ 115 کو آپ 24 گھنٹے سے خود کیلکولیٹ کر لیں، 1 ملین سے زیادہ آپ کی ٹرانزیکشن آ جائے، کلیئر آ جائے گا. اچھا جواب اس بات کا دیں کہ کتنی کمپیوٹنگ پاور ریکوائرڈ تھی پیچھے. کوئی کلاؤڈ لگا ہوگا نا، کوئی ملینز آف پروسیسرز لگے ہوں گے نا پیچھے، سی پی یوز، سرورز، جس طرح Google.com پہ، Facebook.com پہ، یاہو پہ، LinkedIn پہ لگے ہوئے سرورز لگے ہوئے نا. اس سرور کے اوپر وہ جو آپریٹنگ سسٹم چلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. وہ لینکس چلا رہے ہیں، گوگل پہ لینکس چلا رہا ہے، فیس بک پہ لینکس چلا رہا ہے، LinkedIn پہ لینکس چلا رہا ہے، یاہو پہ لینکس چلا رہا ہے، وکیپیڈیا پہ لینکس چلا رہا ہے، آپ کا YouTube پہ لینکس چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اب یہ آپ کا فیصلہ ہے. نمبر 2، اس کے اوپر کلاؤڈ کا انوائرمنٹ کون سا چلایا؟ اگر وہ ایسا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا سافٹ ویئر چلا رہے ہوتے کہ جو 100 کمپیوٹرز کے لیے اس کی ایک پرائس ہے، 200 کے لیے اس سے زیادہ پرائس ہے، 500 کے لیے اس سے زیادہ ہے، اور اگر 10 لاکھ کمپیوٹر لگے ہیں تو اس سے زیادہ پرائس ہے، تو وہ تو جتنے پیسے کمائے ہیں لوگوں کو دے کے فارغ ہو جاتے. تو اس کے اوپر وہ کیا چلا رہے ہیں؟ اوپن اسٹیک. اوپن اسٹیک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا سافٹ ویئر، اوپن اسٹیک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا سافٹ ویئر، چاہے وہ سی پی یوز ہیں چاہے وہ جی پی یوز ہیں. ہاں بالکل کمل، جی پی یوز بھی استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن جی پی یو کو چلانے کے لیے بھی تو آپریٹنگ سسٹم اور سافٹ ویئر چاہیے نا. جی پی یو تو اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، جی پی یو کے اوپر کوئی الگو بھی تو ہوگا.
फिर उसके बाद उसके ऊपर जो उन्होंने इंजन चलाया दैट इज कॉल्ड क्यूबरनेटिस, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब इसी यूज को केस को लेके चले कि अगर वो जो सिस्टम उनका चल रहा था उस सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आता या प्रॉब्लम आती और 1 मिलियन यूजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, 1 मिलियन यूजर 1 सेकंड में, 1 मिनट के लिए सिस्टम बंद हो तो कितने मिलियन यूजर? 60 मिलियन। 1 मिनट का मतलब 60 मिलियन हो गया ना, 60 मिलियन, 6 करोड़ यूजर हैं उस पर, 6 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कैलकुलेट आप लोग खुद करें, माशाल्लाह सारे इंजीनियर्स हैं। उस 1 मिनट के अंदर अगर 6 करोड़ ट्रांजैक्शंस खराब हो जाएं किसी वजह से, वजह बताता हूं, आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, ऑनलाइन चल रहा है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर बग आ गए और आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है, जो हमारे जैसे इंजीनियर्स की नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है, तो फिर क्या होता? क्लाउड पे ऐसा नहीं होता। नंबर 2, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता है। व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज? माइक्रो सर्विस का मतलब ये है कि एक सर्विस को आप छोटी छोटी सर्विसेज में उसका पूरा जाल फैला दें। अगर आपका लोड आ रहा है थोड़े यूजर्स का, मिसाल के तौर पे एक माइक्रो सर्विस 10 यूजर को मैनेज करती है और आपका लोड आ रहा है एक यूजर के माइक्रो सर्विस के ऊपर 1 लाख यूजर का, तो आप उसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और कम होगा तो कम कर देंगे। अब अगर लोड एकदम 6 करोड़ से 60 करोड़ पे चला जाए तो माइक्रो सर्विसेज फैल जाएंगी। ये है ब्यूटी आपके क्लाउड और क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की। मैंने ओपन स्टैक का यूज केस बता दिया, दुनिया का सबसे बड़ा यूज केस जो एक दिन के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर ये जो आपके बड़े बड़े इंजन्स हैं, वॉलमार्ट का मैंने नाम लिया था, पाकिस्तान में ओपन स्टैक आपके यूटिलिटी स्टोर में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वन जिसने वहाँ पे पहला सेटअप किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले। ओपन स्टैक मैंने रिस्क के ऊपर उनको लगा के दिया था कि ओपन स्टैक को आप यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल करें, आप अपना डिजिटल जो आपका जो प्रोसेस है उसको फास्ट करें, और दे सेव्ड लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज वाइल यूजिंग ओपन स्टैक। ये है सारी खेल जो मार्केट में चल रही है। अच्छा, अब एक सवाल था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझें। सबसे पहले ये आपका एंड्रॉयड, ये आपके हाथ में जो चल रहा है, सारों के हाथ में है, मुझे कई लोग इससे देख रहे होंगे। इस एंड्रॉयड के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है ओपन सोर्स, और सिक्योरिटी का जो पैचेस का जो तरीका कार है वो बड़ा फास्ट है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। वो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, जिस तरह गिटहब में पड़ा हुआ है या इसकी मुख्तलिफ फाउंडेशन है, उनके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो एक गवर्नेंस मॉडल के तहत वहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाबर ज़हूर साहब जो है ना वैसे ही गए, उन्होंने जाके कुछ उसमें इंजेक्ट कर दिया और वो सारी दुनिया सोई हुई है जो उसको गवर्न कर रही है, उस प्रोसेस को, उस लिनक्स को, उस सोर्स कोड को, और उन्होंने वही पैक करके दुनिया को भेज दिया। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। करते क्या है कि उस बग को हजारों लोग और टूल्स, डेवऑप्स के टूल्स जिनकी मैं बात कर रहा था, वो मॉनिटर कर रहे हैं, और वो मॉनिटरिंग के दौरान ऑटोमेटेड वो सारे सिस्टम को देखी जा रहे हैं। जो ही कोई सिक्योरिटी फ्लॉ आता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम निकाल के उसको साइड पे रखता है और डेवलपर्स को फौरन इंटीमेट करता है कि ये फ्लॉ है, ये बग है, ये सिक्योरिटी लूप होल है, वर्नेबिलिटी है, फिक्स इट। और इसको हम कहते हैं 0 डे वर्नेबिलिटी। खैर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाके थोड़ा सा और इसके रूल्स टाइट हो जाते हैं, लेकिन चले मैं इसको कहता हूँ 0 डे। तो 0 डे में वो फौरन वो सिक्योरिटी बग आता है, उसको फिक्स करते हैं। अब आपकी क्लोज सोर्स कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल है, आपके पास तो उसका सोर्स कोड ही नहीं है, आपको तो उसके अंदर बग का पता ही नहीं कि बग क्या है। अब वो क्लोज सोर्स कंपनी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बट दिस इज अ रियलिटी, कि वो आपके इंफॉर्मेशन को स्टील करके अपने पास लेके जा रही है, किसी पोर्ट के ऊपर किसी तरीके से वो आपका डेटा निकाली जा रही है आपकी मशीन से। यू डोंट नो कि वो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है आपके सिस्टम के अंदर। तो टेल मी विच वन इज मोर सिक्योर? वो सिक्योर है जिसके सोर्स कोड की एक एक बिट का आपको पता है, एक एक डॉट का आपको पता है कि ये डॉट का फंक्शन क्या है, या वो जो एग्जीक्यूटेबल है जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि वो आपके सिस्टम के अंदर से कितनी चीजें निकाल के बाहर लेके जा रहा है, आपके डेटा को स्टील कर रहा है, आपकी चीजों को निकाल के लेके जा रहा है। सो व्हाट इज सिक्योर? अगर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी का इश्यू होता तो एंड्रॉइड ना होता आपके हाथ में, आपका गूगल ये इस्तेमाल कर रहा होता, फेसबुक इस्तेमाल ना कर रहा था। ये जो स्ट्रीम यार्ड हम यूज कर रहे हैं, ये ओपन सोर्स टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बना है, लिंक्डइन बना है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज।
आपका IBM ओपन सोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, आपका Oracle ओपन सोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, आपका जी माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अजूर चला रहा है, ठीक है, अपने बहुत से टूल्स चला रहा है, आपका Amazon वेब सर्विसेज चला रहा है, गूगल क्लाउड चला रहा है, डिजिटल ओशियन चला रहा है, ड्रीम होस्ट चला रहा है, रैक स्पेस चला रहा है। अच्छा, ओपन स्टैक बनाने वाली कंपनी का नाम रैक स्पेस और नासा ने अपना जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए जितनी भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए थे उसको मैनेज करने के लिए जब उन्होंने मेहनत की तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम जाएं क्या। तो दुनिया का जो पहला क्लस्टर है ना, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर है ऑस्कर्स का, वो क्लस्टर भी नासा के अंदर बना था, वो क्लस्टर भी नासा ने बनाया था अपनी इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद नासा ने ओपन स्टैक को बनाया इसलिए कि वो अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लार्ज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते हैं। वो रॉकेट्स भेज रहे हैं दुनिया में। आपको पता है मार्स के अंदर ओपन सोर्स टूल इस्तेमाल हुआ, जो रॉकेट गया है उसमें पाकिस्तानी लड़का है अहमद अवैस, अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट में उसने काम किया है, मेरा ख्याल है वो UT लाहौर का हिस्सा है शायद, अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट, डॉक्टर वकार का। कहने का मकसद ये है कि अच्छा, उसका नाम माशाल्लाह मुख्तलिफ मैगजीन्स में आ रहा है, दुनिया में अवैस का नाम आ रहा है, एंड ही इज़ डूइंग रिमार्केबल जॉब माशाल्लाह, ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के हमारे दोस्त स्टूडेंट्स मार्केट में आएँ जिनका दुनिया में नाम हो और पाकिस्तान का नाम हो। पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं होगा कि मैं और आप जो है ना लड़ेंगे तो वो दुनिया कहेगी जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हम जब तक एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे आगे नहीं जाएंगे। आई होप ये सिक्योरिटी वाला कंसर्न जो है ये ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, नीचे सर अमेज़ॉन भी पाकिस्तान के साथ वर्क स्टार्ट दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अमेज़ॉन, हाँ, अमेज़ॉन पाकिस्तान में जो आ रहा है वो है अमेज़ॉन की स्टोर की सर्विसेज। तो लेकिन मेरा एक सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं आपको उस सोच को थोड़ा सा ना ज़रा मैं क्लियर करूँगा। मेरी सोच ये है कि अगर आप ट्रेंड हैं मिस्त्री के काम के लिए, मिस्त्री समझते हैं ना जो घर बनाते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर का काम दे दिया जाएगा तो आपसे वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के तौर पे या इस तरीके से आप ट्रेंड हैं तो आपको मिस्त्रियों के काम में लगा दिया जाएगा तो आपसे नहीं होगा। फिर आपको एल्गो लिखना सिखाए गए हैं, आपको कंप्यूटेशनल प्रोसेस सिखाए गए हैं कि आपने किस तरह डिज़ाइन करनी है, आपको ये सिखाया गया है कि आप कोड को किस तरह लिखते हैं, लेकिन आप उससे डेविएट करके एक ऐसा काम करते हैं जो मैट्रिक का बच्चा कर सकता है और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो मेरी सोच ये है कि अगर आप डेविएट करेंगे तो वो जो आपकी डिग्री के बगैर बैठा हुआ है और आप हैं एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो आप अपनी नीश नहीं बना सकेंगे। आपको अपनी नीश बनानी है अपने काम में, जो आपका काम है वो क्या है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ सिखाया गया है। आप इसके ऊपर अपने आप को आगे लेके जाएं, इसके ऊपर अपनी जान मारें, ठीक है ना। बड़ी अच्छी बात है कि वो अमेज़ॉन जो आ गया है वो स्टोर वाला मामला आप लोग करें, लेकिन मेरी नज़र में देखें, मेरी अपनी एक सोच है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपने पैसे ही कमाने हैं, पैसे के साथ बंदे ने अपनी एक रिप्यूट, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक अपना मकाम बनाना होता है, उसके इंटेलेक्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं ना साथ साथ। खाली पैसा ही तो नहीं है कि हमने पैसे कमाने हैं। तो मैं उस सारे को कंबाइन करके ये बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना करें कि फलानी चीज़ आ गई इसके पीछे भागने, नहीं, अपने स्ट्रीम के ऊपर काम करें। मैं 1998 में पहली दफ़ा मैंने लिनक्स का नाम सुना और काम स्टार्ट किया। आज 2021 है। 2008 में मैंने ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाई, जिनमें से एक हसन शबीर राना है और बहुत से दोस्त हैं माशाल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट किया। आप ये देखें कि आज 2021 में जाके दुनिया का डायमेंशन चेंज हो चुकी है, हर चीज़ ओपन सोर्स पे है। लेकिन जब मैं 2008 में पाकिस्तान से कहता कि ये ओपन सोर्स फाउंडेशन है और ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, तो कहते थे ये क्या भला है भाई, ये क्या कर रही हो तुम, ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हो, ये चीज़ क्या है। आज कहते हैं यार वो एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, वो ऐसा कंप्यूटर है, वो सुना है वो फलानी चीज़ आ गई है, फलानी चीज़ आ गई है और वो इस तरह काम कर रही है, वो फलानी कंपनी बड़ी हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब ये बात आखिर में करूँगा उन दोस्तों के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं।
جو اپنی कंपनियां बनाना चाहते हैं। जब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लेंगे जो बड़ी कंपनी से महंगा सॉफ्टवेयर आप लेके अपनी कंपनी में स्टार्ट करेंगे, 10 यूज़र को सर्व करेंगे तो 10 का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तो आपकी इनकम में से इनकम आगे जाएगी। जब आप ओपन सोर्स इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ बिल्ड करेंगे तो 10 को बेचेंगे तो किसी और को पीछे नहीं देंगे पैसे, या देंगे तो बड़े थोड़े देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। तो मेरा आपसे मशवरा है कि 10 यूज़र के लिए सर्विस बनाएं, 10,000 के लिए बनाएं, 10 करोड़ के लिए बनाएं। 99% कोशिश करें कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से हो, ताकि आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपको शेयर कम से कम देना पड़े पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी को। और उन लोगों के लिए जो ओपन सोर्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जॉइन cncf.io, cncf.io, openstack.org, वहाँ पे ज्वाइन का कम्युनिटी का पेज बना हुआ है। आपकी लिनक्स फाउंडेशन को ज्वाइन करें, मोजिला फाउंडेशन को ज्वाइन करें, फायरफॉक्स जो बनाती है, गूगल की जो गूगल क्रोम का जो बिल्ड है कुछ बनाने के लिए कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। इसी तरह रेड हैट की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, उबंटू की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। ये काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो ओपन सोर्स पे काम कर रही हैं। गिटहब के ऊपर जाके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करें एंड मेक योर सेल्फ विजिबल इन दैट बिगर पिक्चर। अपने मोहल्ले में आपने नाम बना लिया, माशाल्लाह, अब अपने मोहल्ले से निकल के, शहर से निकल के दुनिया के डिजिटल प्लेस के ऊपर अपना नाम बनाएं। और वन थिंग, क्लेम योर डिजिटल स्पेस। इससे पहले कि बाबर ज़हूर कोई और ले जाए और उस पर कुछ गंदबला डाल दे, babarzahur.com मैं रखूँगा, और बाबर ज़हूर का फेसबुक अकाउंट मेरा होना चाहिए, मेरी शक्ल से होना चाहिए ना, मेरी पहचान होनी चाहिए ना। क्या खाया पिया हज़म किया उसके बाद मर गए, ये ज़िंदगी ये ज़िंदगी नहीं है। सही है जी। सॉरी, मैं थोड़ा सा, ओपन सोर्स इज़ माय पैशन, तो मैं ज़रा जज्बाती भी हो जाता हूँ, और जज्बाती होने की वजह आप लोग हैं, क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मुझे जज्बाती होना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लोग सुनते थोड़े कम हैं माजरत के साथ। जी अक्सा। Okay, any other comment? I think comments are bored. Okay, thank you, sir. In the end, I would like to once again thank our speaker for joining us today. It was a magnificent pleasure having you on the board, and I would also like to thank our sober audience. Thank you everyone for your time. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच IEEE, UET और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा और आपने इनवाइट किया। अल्लाह हाफ़िज़।